Most students read the whole review article topic and still get the MCQ wrong. Why? Because they read it, they never tested it. In the next 10 to 15 minutes, I am going to put you under exam conditions. 5 MCQ, 3 OSPI station, 1 Prisma flowchart with a hidden flaw. If you can answer all 5 MCQ questions correctly, you are ready for your professional exam. If you can't, you need this video more than you think. Let's find out where you stand. Just a reminder before jumping in MCQs. This is a book for first year MBBS with all the teaching and exam material as per modular system. You can buy it by messaging on a given number or email address. Let's sit for exam for practice. Let's start with the first MCQ. A medical student wants to summarize all published randomized controlled trials on a specific drug intervention. Which type of review article is most appropriate? अब वो करना चाह रहा है काम randomized controlled trials पे, तो उसके लिए 4 ऑप्शन उन्होंने दी है: नरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, स्कोपिंग रिव्यू, इंटीग्रेटिव रिव्यू। अब हम ए से शुरू करते हैं कि नरेटिव रिव्यू जो होता है इसके करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड मेथोडोलॉजी नहीं होती है जो कि हमें आरसीटी की स्टडीज को रिव्यू करने के लिए चाहिए। सिस्टमैटिक रिव्यू जो होता है ये एक प्री डिफाइंड जो मेथोडोलॉजी है उस पे एक्ट करता है और ये ज़्यादातर इसका फोकस होता है क्लिनिकल क्वेश्चंस पे जो कि आइडियल है फॉर द आरसीटीज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्कोपिंग रिव्यू जो होता है अगर हम उसको देखें तो उसकी जो स्टडी है ये वाली जो स्टडी करता है ये एविडेंस तो जनरेट करता है लेकिन क्वालिटी अप्रेजल नहीं होती है। चौथी ऑप्शन जो है दैट इज इंटीग्रेटिव रिव्यू। तो इंटीग्रेटिव रिव्यू जो होता है दैट इज फॉर द कम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए होता है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द आरसीटी। तो देन द करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक रिव्यू। Coming to the MCQ2, in a systematic review, what does the PRISMA flow chart primarily illustrate? There are the 4 options A, B and C, D. A में है the statistical analysis of pool data, B the funding sources for the review, C is the step-by-step process of study identification, screening and selection. जो D है the quality grading of individual study. PRISMA जो कि हम preferred reporting item है for systematic reviews and meta-analysis is a transparency tool है। ये फ्लो चार्ट शो करता है हमें कि कैसे रिसर्चर ने इनिशियल डेटाबेस सर्चेस से मूव करके फाइनल नंबर ऑफ स्टडी उसने कैसे इंक्लूड की हैं और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और थ्रू आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, एलिजिबिलिटी असेसमेंट एंड इंक्लूजन ये एक पूरा फ्लो चार्ट बना देता है। इट इज मैंडेटरी फॉर द मोस्ट पीयर रिव्यूड जर्नल। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Statistical pooling जो होती है this is mainly the feature of which is option A is the mainly the feature of meta analysis not the Prisma flow chart। इसी तरह क्वालिटी ग्रेडिंग और फंडिंग प्रोसेस जो है ये Prisma flow chart में नहीं आते हैं। The correct answer is C। MCQ3 is which section of a review article describe the databases, search, date ranges and inclusion exclusion criteria। ये हमने रिव्यू आर्टिकल की जो राइटिंग में देखा था कि दिस कम्स इन द मेथड सेक्शन। ये तीनों हमने मेथड में यही 3 चीजें लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स और डिस्कशन में नहीं। ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यू कैन रीड इट क्लियरली। Coming to the MCQ4, a researcher finds that 2 included study report contradictory finding. Where in the review article should this be addressed? बगैर किसी ऑप्शन के we can say that it should be addressed in the discussion. जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रिजल्ट्स को, हम स्टेटमेंट जो हमारा रिजल्ट जो हमें बता रहा होता है उसको हमने यहाँ डिस्कस करना होता है कि ये पॉसिबल रीजन क्या थी कॉन्ट्राडिक्टरी होने की, कहाँ डिफरेंसेस थे इन दोनों स्टडी में, और ये सारा कुछ डिस्कशन में आएगा। नॉट इन रिजल्ट, नॉट इन कंक्लूजन, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिस्कशन। Let's discuss MCQ5. Which of the following is the critical difference between a systematic review and a narrative review? A ऑप्शन है कि narrative review जो होता है always include more study। ऐसा नहीं है, किसी में कितनी स्टडी हो सकती है, depends upon availability of study in that period जो आप स्टडी कर रहे हैं। B is systematic reviews use a predefined reproducible search protocol। ये बिल्कुल ठीक है, ये systematic review में होता है, narrative में नहीं होता।
नरेटिव रिव्यूज हैव लो रिस्क ऑफ बायस, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो लोअर बायस रखता है देन द नरेटिव रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यूज डू नॉट रिक्वायर अ कंक्लूजन, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। द correct answer is B. Before starting the second part of exam, that is structured exam station on review article writing, a reminder to like and subscribe both channels, that is Research Map and Global Medical Career Mentor. Let's start with our OSPI or OSCE station. Let's start with the first station of OSPI और OSCE। उसका पहले हम सिनेरियो देखेंगे। एक सिनेरियो दिया होता है जो कि यहाँ पे है कि you are given the following research question, what is the effectiveness of hand hygiene intervention in reducing healthcare associated infections in hospital setting। अब आपको लिखना क्या है कि you are required to write the method section of a systematic review to answer this question। टास्क आपका क्या है कि जो मेथड सेक्शन आपने लिखना है वो कैसे लिखना है फॉर दिस सिस्टमैटिक रिव्यू, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए आपकी सर्च स्ट्रेटजी, आपके डेटाबेसेस, डाटा रेंज, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और दिस विल मेक 10 मार्क्स। और एमबीबीएस एग्जाम के लिए 14 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इसकी जो मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 3 रेलेवेंट डेटाबेसेस देते हैं तो देन इट विल अर्न यू 2 मार्क्स, और अगर आप स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ मैच टर्म्स, कीवर्ड्स इंक्लूडिंग बूलियन ऑपरेटर देते हैं देन इट विल आल्सो गिव यू 2 मार्क्स। देन स्टेट अ डिफाइंड डेट रेंज विद द जस्टिफिकेशन, तो 1 नंबर मिलेगा, विदाउट जस्टिफिकेशन नंबर आधा हो जाएगा। आपने लिस्ट करना है इंक्लूजन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द पीको एंड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो पहले बता चुकी, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट, ग्रे लिटरेचर, नॉन इंग्लिश पब्लिकेशन, स्टडी विदाउट full text. This can also earn you 2 marks, 2 for the inclusion and 2 for the exclusion criteria। फिर आपने मेंशन करना है कि प्रिज्मा फ्लो चार्ट यूज किया है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए स्टडीज को, तो ये विल अर्न यू अनदर 1 mark and in this way you will get 10 full marks by using this marking scheme। I would recommend कि आप इसको सिनेरियो को पढ़ के पहले अपना एक मेथड सेक्शन लिख लिए एंड देन कंपेयर इट वेदर यू हैव रिटन दीज थिंग्स और नॉट। Let's discuss OSCE station 2 scenario is a colleague has written the following conclusion for a systematic review on physical activity in type 2 diabetes। Physical activity is very good for diabetes, patient should exercise more, also diet is important and mental health matters too, further research should लुक एट एवरीथिंग। अगर इसको देखें तो ये हमें सिनेरियो दे दी है, टास्क है कि क्रिटिकली एवेलुएट दिस कंक्लूजन एंड री राइट इट इन ए फॉर्मेट एप्रोप्रिएट फॉर पब्लिकेशन इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल। इसके इन्होंने 8 मार्क्स लगाए हैं, 10 भी हो सकते हैं, 14 फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए अक्सर होते हैं जो कि मॉडल एग्जाम में है। अगर इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ देख लेते हैं, सबसे पहले आपने रीड राइट करने में ये करना है कि आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को, वेग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जैसे कि यहाँ की गई है वेरी गुड एवरीथिंग, और नई टॉपिक्स को अपने नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है जैसे कि यहाँ पे डाइट और मेंटल हेल्थ को इंट्रोड्यूस करा दिया है। अगर ये सब आपने कर लिया तो देन 2 मार्क्स हैं इसके। इसी तरह नोट कंक्लूजन डज नॉट आंसर अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, अगर वो 1 नंबर का है, और लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, नो इफेक्ट साइजेस और नो पॉपुलेशन क्वालिफायर, ये 1 नंबर का है। री राइट्स टू डायरेक्टली आंसर द रिव्यूअर्स रिसर्च क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट आंसर करेंगे तो देन 1 नंबर होगा। रीराइट टू इंक्लूड अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस इम्प्लीकेशन फॉर क्लिनिशियन और पॉलिसी मेकर, कोई हल दें उस चीज का उस स्टडी में से, तो देन आपको 1 नंबर मिलेगा। और उसके बाद रीराइट टू रिकमेंड अ स्पेसिफिक फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, ये नहीं कि फर्दर रिसर्च शुड लुक एट एवरीथिंग, तब आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। डेमोन्स्ट्रेट नो न्यू एविडेंस इज इंट्रोड्यूस इन द रीरिटन कंक्लूजन, ये आपको 1 नंबर देगा। तो ये इस तरह 1 मार्क्स होते हुए यू विल एबल टू गेट 8 मार्क्स अगर कंक्लूजन को उन 3 जुमलों तक महदूद रखेंगे जो कि हम राइटिंग ऑफ रिव्यू आर्टिकल के कंक्लूजन लिखने के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। गो थ्रू दैट सेक्शन बिफोर राइटिंग रीराइटिंग दिस सिनेरियो।
OSCE station number 3. This is the most common station scenario जो कि MCPS, MBBS और MPH एग्जाम में अक्सर आता है. Note down it. Scenario is you are shown a Prisma flowchart from a published systematic review. The flowchart shows 1240 records identified, 890 after duplicate removal, 145 full text assessed, 22 study included. However, the flowchart does not state the reason for excluding 123 full text article. Task क्या है कि आपने identify करना है the methodological flaw in the Prisma flowchart and explain its significance for the quality and reproducibility. Also describe what information should have been reported. ये 10 नंबर का है, can be 14 marks for MBBS student. अब जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है? अगर हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लॉ को, दैट इज एक्सक्लूजन रीजन नॉट स्टेटेड फॉर 123 जो स्टडीज को एक्सक्लूड किया गया है, तो देन इट विल कॉज 2 मार्क्स. अगर हम सिग्निफिकेंस उसकी एक्सप्लेन करते हैं कि वायलेट प्रिज्मा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इट रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो देन इट विल आल्सो गिव यू 2 मार्क्स. एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि इंट्रोड्यूसेस रिस्क ऑफ सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग बायस, कि हम अपनी मर्जी से स्टडी को शायद हमने सिलेक्ट कर लिया है, दिस इज द बायस. It will also give you 2 marks and then state what should be reported. Specific reasons for exclusion of those studies should be stated in the methodology. States that the number of the study excluded for each reason should be documented separately in the flow chart. ये another 2 marks आपको देगा. तो इस तरह ये 5 अगर हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस प्रिज्मा चार्ट में, तो हमें 10 मार्क्स मिल जाते हैं. Key takeaways what you must remember इस सारी presentation के बाद there are the 3 most important to do. Method section is the heart of a review. No reproducible search is not a systematic review. Discussion जो है वो interpret करती है और result report करता है. Never confuse the two. Conclusion must answer your search question directly. No new data, no vague statement. जो एग्जाम शॉर्टकट है वो क्या है कि प्रिज्मा किसके लिए यूज होता है? ट्रांसपेरेंसी टूल है फॉर स्टडी सिलेक्शन. सिस्टमैटिक जो रिव्यू है ऑलवेज सुपीरियर ओवर नरेटिव फॉर एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन. मैच टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है, बूलियन ऑपरेटर क्या है. इसी तरह सर्चेबल जो रेप्लिकेबल स्ट्रेटेजी है वो क्या है. टेस्ट एंड ग्रेड क्या है? These are the two to praise quality of included study. These are the tips for the exam. शॉर्टकट है एग्जाम के लिए जो टिप है वो ये है कि MCQ पैटर्न जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए ओवर दिस रिव्यू आर्टिकल. टाइप ऑफ रिव्यू फॉर RCT क्वेश्चन के लिए हो सकता है. प्रिज्मा क्या शो करता है, वेदर कोई भी वो उसमें फ्लॉ ढूंढ के आपको दे सकते हैं. विच सेक्शन जो है उसमें हम कौन से सेक्शन में सर्च स्ट्रेटेजी लिखते हैं. और वेयर टू डिस्कस कॉन्ट्राडिक्शन हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं. सर्च स्ट्रेटेजी हम इसी मेथोडोलॉजी में लिखते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कशन में करते हैं. और सी पैटर्न जो है राइट द मेथड सेक्शन हो सकता है, क्रिएटिव का वी कंक्लूजन हो सकता है, आइडेंटिफाई प्रिज्मा फ्लो चार्ट फ्लॉज हो सकता है, या इवैल्यूएट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिस्ट हो सकता है. ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड इन द लेक्चर. रिव्यू वंस बिफोर योर एग्जाम. You have now done both parts of review article series. Part 1 gave you the structure, part 2 put you through the exam, 5 MCQ, 3 hospice station, including the one question most students get wrong, the Prisma flowchart flaw. If you spotted it, you are ahead of your batch. If you missed it, you know exactly what to revise. Here is what to do next. The case study series is live on this channel, same format, complete teaching in the part 1, full exam prep in the part 2. It pairs directly what you just learned. Link is in the bio. And if you like this video, it helps you leave a comment. Tell me your score on the 5 MCQs, 5 out of 5. I wanted to know. Subscribe, share it with your study group. Next videos every week. Teaching, exam prep, research and AI tool. This is Research Map. I am Professor Dr. Tazim Shahbaz and I will see you in the next video. Allah Hafiz.